Hi, Namaskar, dear students. Good morning. So today we are going to discuss about the most important concept is the dyslipidemia. Okay, dyslipidemia means hyperlipidemia, high concentration of lipids. As you know, in this lecture we are going to discuss about the key management points. We are not going to discuss about the physiology, pathology of dyslipidemia and what's the clinical management points. Okay, we are only going to touch upon the overview of the dyslipidemia and we are going to discuss about the individual medications with the key points. तो आपका जो मेन लर्निंग पार्ट है वो आइदर यू कैन लर्न इट फ्रॉम द क्लिनिकल साइंस और यू कैन लर्न इट फ्रॉम द फार्माकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स है वहाँ से आपको लिपिड के बारे में पढ़ना ज़रूरी है. यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द की पॉइंट्स अबाउट द मैनेजमेंट एंड फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफ द डिस्लिपिडेमिया मेडिकेशंस. ओके, तो जैसे आप लोग जानते हो उस तरह से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास यू शुड हैव टू बी एट द पोजीशन टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट 15 to 20 की पॉइंट्स अबाउट द लिपिड मैनेजमेंट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ द डिस्लिपिडेमिया. वी आर गोइंग टू discuss each and every medications in brief and then we are going to start discussing statins, fibrates and other medications. Okay, high low density lipoprotein. So first of all you have to understand what is the lipoprotein. Lipoproteins, lipid and protein, this is the core that's covered with the lipid part, okay, and the triglyceride part. Very low density lipoprotein. After removing the triglyceride, this is called the low density lipoprotein. So very low density lipoprotein, what is this? What is low density lipoprotein? What is triglyceride? What is high density lipoprotein? Okay, and what is the chylomicron? So all this terminology you have to understand. What is the normal range of these lipids and from which point onwards we can consider that as abnormal conditions. Okay, high concentration of low density lipoprotein, this is very dangerous for the cardiovascular problems. Atherosclerosis and cardiovascular disease is associated with the high concentration of the low density lipoprotein. Reducing the low density lipoprotein that significantly reduce the chances of cardiovascular events. That means 1 millimole per liter reduction in low density lipoprotein that reduce the 20% of chances of cardiovascular problems. That level of significant correlationship between the lipids and cardiovascular events. Okay, that's why this is very important, because all across the world about 27% of the mortality is because of the cardiovascular problems, and the major cause of atherosclerosis and cardiovascular is because of the high lipid concentration, and that is obviously through the lifestyles, metabolic disorders and the food. The another important part that is considered as a triglyceride. Okay, the raised triglyceride concentration that also increase the coronary artery disease, and the severe hypertriglyceridemia, that is increase the risk of pancreatitis. This is important point. Okay, so here you have to keep in mind two important things. One is the high concentration of low density lipoprotein and high concentration of triglyceride. Okay, high concentration of low density lipoprotein increase the risk of cardiovascular events, and significant high concentration of triglyceride that increase the risk of acute pancreatitis. So we are going to focus two different medications. One is reducing the low density lipoprotein and other one is reducing the triglyceride. If both low density lipoprotein as well as triglyceride both are high, that is called the mixed dyslipidemia. So one is hypercholesteremia, hypertriglyceridemia, and third one is mixed dyslipidemia. So these are the three terms. And what is the clinical importance of the higher concentration of different kind of lipids? These points need to be clear in your mind, and on based upon that we are going to select the different medications. Low
concentration of high density lipoprotein, this is considered as a good lipid, this is bad lipid. Okay, so this is a good lipid. If the low concentration of high density lipoprotein, low concentration, that is also linked with the increased risk of cardiovascular problems. पर उससे थोड़ा सा अलग है कि अगर हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क या फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम है बॉडी में तो उससे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर। ओके, तो ये 3 अलग अलग टर्म्स के बारे में आपको समझ होना जरूरी है। Why we are using the lipid lowering medications? Lipid lowering medications we are using because that decrease the atherosclerosis progression, decrease the risk of myocardial infarction and stroke, that decrease the risk of premature cardiovascular morbidity and mortality, and prevent the pancreatitis. So all these are the objectives behind using the lipid lowering medication. Okay, before starting the treatment, we have to lipid profile need to be done. Along with lipid profiles, also we have to find out what are the risk factor associated with this. Okay, so risk factor of cardiovascular plus lipid profile, on based upon that we are going to design the treatment goal plan. Okay, this is the first point. The second point is we have to identify the what is the main cause of secondary cause of lipid high concentration. क्यों बढ़ रहा है, क्यों इसका लिपिड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी मतलब ड्यू टू सम अदर डिजीज कंडीशन द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिपिड, दैट मीन्स डायबिटीज है या तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो इसकी वजह से अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो वी हैव टू कंट्रोल दिस कंडीशंस एंड ऑटोमेटिकली वी कैन कम टू द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। अगर ऐसा नहीं है तो दैट इज कंसिडर्ड द प्राइमरी हाइपर dyslipidemia. Okay, otherwise that called the secondary dyslipidemia. Other cardiovascular risk factor need to be modified, जैसे कि हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो वी हैव टू स्टार्ट विद द प्लेटलेट को इनहिबिट करने वाले मेडिकेशंस लाइक एस्पिरिन्स एंड प्रमोट द हेल्दी लाइफस्टाइल्स. So these are the theoretical points that you have to keep in mind. Okay, weight control, low alcohol, Mediterranean diets means low oil containing diets, decrease saturated and trans fat, increase physical activities, and refer dietitian. So all the lifestyle modified measures need to be taken to control lipid concentration. Suspect the familial hypercholesterolemia. It is the hereditary or other genetic issues associated with the cholesterol high concentration that need to be addressed, and the special kind of treatments required for such kind of patients. Okay, तो यहाँ पे total cholesterol is more than 7.5 millimole per liter, then we can suspect the significant high hypercholesterolemia, and this might be due to some severe condition is existing in the body. Okay, family history, premature cardiovascular death. So ऐसी situations में specialized जो डॉक्टर्स है उसकी एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक abnormalities हो सकती है और ऐसे पेशेंट्स में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हैंडल करने वाले रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, या तो उसका ऑटो इम्यून या तो ऐसी कंडीशन से उसका डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट रेट से होता है. ओके, डन. सो कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत कब नहीं है? इफ़ स्टेबलाइज कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कोई पेशेंट को ऑलरेडी एक बार अटैक आ चुका है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या तो स्ट्रोक, या तो स्ट्रॉन्ग फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, या तो सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या तो अदर कंडीशंस है. ओके, तो ऐसी सिचुएशन में रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इफ़ द पेशेंट इज़ 45 to 79 ईयर ओल्ड, डायबिटीज़ से बहुत सालों से, या तो कुछ स्पेशल पॉपुलेशंस में है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज वी हैव टू
analyze the cardiovascular risk assessment, and on top of that कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट के साथ में उसकी लिपिड प्रोफाइल को देख के देन वी हैव टू डिज़ाइन द गोल फॉर द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट. ओके, क्योंकि अल्टीमेटली वाई वी आर ट्रीटिंग द लिपिड कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरलिपिडेमिया को हम ट्रीट इसलिए करते हैं ताकि उसका जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाए. क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो भी उसको भी हम सीवियर सिचुएशन में मान के ही चलते हैं. ओके, हाई रिस्क पेशेंट है तो उसमें विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट वी मस्ट हैव टू स्टार्ट विद द लिपिड लोअरिंग मेडिकेशंस विद एंटी हाइपरटेंसिव. इंटरमीडिएट कंसिडर ड्रग ट्रीटमेंट. लो रिस्क वाले पेशेंट में रूटीन ड्रग ट्रीटमेंट नॉट रिकमेंडेड अगर उसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो लेस देन 5% में है. ट्रीट ऑल विथ 7.5 मिलीमोल पर लीटर ट्राइग्लिसराइड कॉन्सेंट्रेशन है. एलडीएल की कॉन्सेंट्रेशन टोटल कोलेस्ट्रॉल इज 7.5 मिलीमोल पर लीटर और एलडीएल इज 5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है. ओके, तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना ज़रूरी है. तो आपके पास बन गया टोटल कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन 7.5 मिलीमोल पर लीटर और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन 5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है. तो ऐसे पेशेंट को मस्ट हैव टू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट. और अदर सिचुएशन में डिपेंड अपॉन द कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स वी हैव टू सेलेक्ट द मेडिकेशंस एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट. Okay, so that's the management plan. Now let's we try to understand the different medications. Drug choice. The most important for the cholesterol level. Cholesterol means low density lipoprotein. इसको रिड्यूस करने के लिए स्टेटिन्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस. क्यों? दिस इज द फर्स्ट चॉइस फॉर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया. ये याद रखना बहुत जरूरी है. अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो स्टेटिन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल. अगर ट्राइग्लिसराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो फाइब्रेट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल. ये दो मेडिकेशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है. ओके, फर्स्ट चॉइस फॉर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया. Statins reduce low density lipoprotein up to 55% एंड ट्राइग्लिसराइड को देखो वो 20% तक रिड्यूस कर सकता है. वेल टॉलरेटेड है मेडिकेशंस एंड स्टेटिन्स आर गिवन वंस डेली. मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, स्ट्रोक एंड मोर्टालिटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. 1 मिलीमोल पर लीटर ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर हमने रिड्यूस किया तो दैट रिड्यूस द कोरोनरी डेथ बाय 20% एंड नॉन फेटल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का रेट 27% रिड्यूस होता है. दैट मीन्स हाई रिस्क पेशेंट विथ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया वी मस्ट हैव टू स्टार्ट विद द स्टेटिन्स एंड दैट्स वाई स्टेटिन इज द most commonly prescribed medication in your daily practice, and that's why you can expect the questions from the statins is very obvious. Okay, इतना बड़ा बेनिफिट्स है स्टेटिन्स के यूज़ का. दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन. अगर आप डेली प्रैक्टिस में देखोगे तो हाईएस्ट मूविंग मेडिकेशंस में स्टेटिन्स आता है. इफ द स्टेटिन्स आर इनएडिक्वेट, स्टेटिन्स से पेशेंट को रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलता है तो हमें हमारी प्रैक्टिस में क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सबसे पहले तो पेशेंट के कंप्लायंस को चेक करना है. Before start increasing the dose, we must have to review the patient is complied with the medication or not. उसका medication adherence कैसा है, वो regularly दवाई लेता है या नहीं लेता है. लेता है तो right methodology से लेता है या नहीं लेता है. Once we confirm that, then only we can increase the dose or switch to more potent statin. पहले कंप्लाइंस को देखना जरूरी है. अगर कंप्लाइंस का मतलब पेशेंट रेगुलरली दवाई लेता है या नहीं लेता है. इफ द पेशेंट इज टेकिंग रेगुलर मेडिकेशंस, दो पेशेंट इज नॉट गेटिंग बेनिफिट्स, देन वी कैन इंक्रीज द डोज. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि मैक्सिमम जो बेनिफिट्स है वो हमें मिल जाता है 50% ऑफ द मैक्सिमम डोज पे. उसके बाद स्टेटिन्स के डोज को बढ़ाना चाहिए या दूसरी मेडिकेशंस को ऐड करना चाहिए. तो एड एजिटेमाइब या तो इवोलोकमेब या तो inclisiran, this kind of medications can be added
तो स्टेटिन्स के साथ में ऐसे कंबाइन करके मेडिकेशंस देंगे तो वी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द डोज टू द हाईएस्ट। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल के डोज पे स्टेटिन को रख के मेडिकेशन को एड करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस। फॉर हाई ट्राइग्लिसराइड कंसीडर फिनोफाइब्रेट्स और फिश ऑयल। तो ट्राइग्लिसराइड के लिए कौन है? फाइब्रेट्स है। कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन है? स्टेटिन्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, चलो अभी यहाँ पे मेडिकेशंस की एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले देखिए स्टेटिन्स, फिर कोलेस्ट्रोलमाइन, इजिटिमेब, फाइब्रेट्स और एक होगा फिश ऑयल, निकोटिनिक एसिड। ओके, पहले इतना देख लेते हैं, स्टेटिन्स, कोलेस्ट्रोलमाइन, इजिटिमेब एंड फाइब्रेट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या देखना है? देखिए सबसे ज़्यादा किसका रिडक्शन करता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का। तो स्टेटिन्स इज मेनली फॉर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बट दैट ऑल्सो रिड्यूस द ट्राइग्लिसराइड। उसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटिन्स आर कंसिडर्ड एज ए गुड चॉइस ऑफ मेडिकेशन फॉर मिक्स डिसलिपिडेमिया, लेकिन उसका ज़्यादातर इंक्लिनेशन कोलेस्ट्रॉल की तरफ है कंपेयर टू ट्राइग्लिसराइड। एग्जैक्ट सेम ऐसा ही आप फाइब्रेट्स में देखो, तो फाइब्रेट्स में 40 to 80% ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है, लेकिन 15-20% वो एलडीएल को भी रिड्यूस करता है। तो स्टेटिन्स आर मेन फॉर द कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रेट्स मेन फॉर द ट्राइग्लिसराइड, लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट दिस मेडिकेशंस कैन रिड्यूस द अदर लिपिड एज वेल। अब कोलेस्ट्रोलमाइन में से क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखो। कोलेस्ट्रोलमाइन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को तो कम करता ही है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रोलमाइन में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड लोवरिंग मेडिकेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो कोलेस्ट्रोलमाइन ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाता है। ओके, एजिटेमेब ट्राइग्लिसराइड पे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को 15 to 25% रिड्यूस करता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि स्टेटिन्स विथ एजिटेमाइब वो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, स्टेटिन विथ कोलेस्ट्रोलमाइन एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। ओके, तो कोलेस्ट्रोलमाइन एंड एजिटेमाइब इज कंसिडर्ड एज एडजंक्ट थेरेपी, मतलब वो एज ए कॉम्बिनेशन थेरेपी वी कैन यूज विद द स्टेटिन्स। ओके, फॉर लिपिड लोवरिंग। अब वंस डेली 1 to 4 times a day, once daily, ezetimibe once daily. तो statins and ezetimibe can be given once daily format. Fibrates can be once or twice daily. ये उसके रिलेवेंस इंपॉर्टेंट नोट्स आप याद कर सकते हो। और मेडिकेशन देखो, फिश ऑयल का मेन पर्पस क्या है? ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है। तो फिश ऑयल इज मेन टूवर्ड्स द ट्राइग्लिसराइड लेवल, इट्स नो इफेक्ट ऑन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इसको देखो, निकोटिनिक एसिड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्सटेंस। निकोटिनिक एसिड इज रिड्यूसिंग बोथ 15 to 30% लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, 25 to 40% ट्राइग्लिसराइड। उसका मतलब ये हुआ कि निकोटिनिक एसिड हैज़ ए बैलेंस प्रोफाइल, वो दोनों को ही रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज ट्राइग्लिसराइड को। इवोलुक्यूमेब and inclisiran, these are the reducing the low density lipoprotein। अब आपको क्या करना है? ऐसे करके एक टेबल बना देना है, इसमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लिखना है, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड लिखना है। अब देखिए ऐसे करोगे तो ये होगा फाइब्रेट्स, ऐसे करोगे तो ये होगा स्टेटिन, ऐसे करोगे तो ये होगा निकोटिनिक एसिड, ये करोगे तो ये होगा आपका फिश ऑयल, और इस तरफ कोलेस्ट्रॉल की तरफ करोगे तो आपका होगा कोलेस्ट्रोलमाइन, उसके बाद इजेटेमाइब, उसके बाद आपका दिस इज द इवोलोक्यूमेब एंड इनक्लिसरेन। तो उसका मतलब आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लोगे कि कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिकेशंस कौन सी है, ट्राइग्लिसराइड रिड्यूसिंग कौन सी है, और कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड दोनों की तरफ कौन सी है। ओके, तो ओवरव्यू में यू कैन गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द विच मेडिकेशन इज प्राइमरीली यूज फॉर व्हाट काइंड ऑफ पर्पस।
ओके उसके बाद प्रेगनेंसी वाला जो पार्ट है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन नहीं दी जाती है. It's normally is need to be avoided. Why this need to be avoided? Because the cholesterol is very important for fetus development. अब कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारे हॉर्मोन्स बनते हैं, स्किन, सेल वॉल्स, बहुत सारी चीज़ें बनती है. तो कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीटल डेवलपमेंट. इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन में कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस आर ओनली गिवन थ्रू द स्पेशलाइज्ड, जो बहुत बहुत रिक्वायर्ड है, तभी जाके उसको दी जाती है. इन नॉर्मल सिचुएशंस इट्स नीड टू बी अवॉइडेड टू कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. चिल्ड्रंस में नॉर्मली हेल्दी लाइफस्टाइल्स को प्रमोट किया जाता है. इफ़ इट्स नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, तो स्टेटिन्स कैन बी गिवन 8 years और अबोव के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं. Okay, lifestyle change is very important for the cholesterol lowering. Measure lipid profile every 4 to 6 weeks during the titration, because we are gauging the benefits associated with the medications that required 4 to 6 weeks. तो आज मेडिकेशन चालू की तो कंटिन्यूसली पेशेंट 4 to 6 वीक्स लेने के बाद उसकी फिर से लिपिड प्रोफाइल करके उसमें हमें उसकी इफेक्ट को देखना है. एंड देन वी हैव टू मेक डिसीजंस मेडिकेशंस के डोज को अप डाउन कैसे करना है. आफ्टर स्टेबिलाइज, वंस द पेशेंट इज स्टेबिलाइज विद द डोज, देन 6 to 12 months में उसके लिपिड प्रोफाइल को मॉनिटर करना है. रीअसेस द रिस्क बेनिफिट्स इन एल्डरली पेशेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मायोपैथी या तो मसल पेन की प्रॉब्लम्स और उसके जो रिस्क है उसके साथ में उसके बेनिफिट्स को ऑलवेज रीअसेस करते रहना जरूरी है. ओके, तो दैट वाज द ओवरव्यू अबाउट ऑल द मेडिकेशंस. नाउ वी कैन जंप इनटू द स्टैटिन्स. स्टैटिन्स HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, उसका जो मेन सब्सटेंस के नाम है उसमें आपको पीछे स्टेटिन्स दिखेंगे. अटोरवास्टेटिन, फ्लुवास्टेटिन, प्रवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन एंड सिम्वास्टेटिन. दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज स्टेटिन्स. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अप्लाइड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में और क्लिनिकल साइंस में. तो आप अगर वहाँ से पढ़ोगे तो थियोरेटिकली आपको अच्छी समझ आएगी. कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट, यहाँ पे ज़्यादातर क्लिनिकल पॉइंट्स को हम फोकस कर रहे हैं. ओके, जो प्रैक्टिस के ओरिएंटेड है. कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द HMG कोए रिडक्टेज. ये जो एंजाइम है दैट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. इसको ही हम इनहिबिट कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी. दिस इज द वन थिंग. दूसरा जो उसका जो मेन रोल है वो है हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल अपटेक इंक्रीज होगा. जैसे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ये जो रिसेप्टार्स है LDL के रिसेप्टार्स वो बहुत ही ओवर एक्टिव हो जाएंगे एंड दे कैन स्टार्ट रीअपटेकिंग द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. ये सेल्यूलर लेवल पे या तो लिवर में LDL की अपटेक बढ़ती जाएगी तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन LDL की कम होती जाएगी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, LDL की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम होगी क्योंकि ये रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ गई और उसका सेल्यूलर अपटेक बढ़ गया. देखिए, increase the hepatic cholesterol uptake from the blood, and that's why decrease the total cholesterol, decrease the LDL and triglyceride level, and relatively increase the HDL level. Okay, तो दो main and most important mechanism associated with the statins. One is production को कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और दूसरा उसकी अपटेक को इम्प्रूव करता है. अपटेक को इम्प्रूव करेगा तो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. इंडिकेशन 2 है हाइपर कोलेस्ट्रोमिया के लिए और कुछ हाई रिस्क पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं भी बढ़ा है तो भी स्टेटिन देने से बेनिफिट्स होता है. ओके, प्रिकॉशन, सीवियर इंटरकरेंट इलनेस जैसे इन्फेक्शन, ट्रोमा, मायोपैथी, रॉब्डोमायोलिसिस, रीनल फेल्योर, ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. मायोपैथी का रिस्क है, मायोपैथी, रॉब्डोमायोलिसिस मतलब मसल पेन के लिए जो इसकी सीवियर कंडीशन है उसको बोलते हैं रॉब्डोमायोलिसिस.
और ये सिचुएशन में क्रिएटिनिन काइनेज को हम मॉनिटर करते हैं. क्रिएटिनिन काइनेज is a bioiso enzyme that is releasing from the muscles wasting. जब मसल्स डैमेज होती है तो ये एंजाइम्स रिलीज होता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ myopathy. If the patient has myopathy history, avoid the use with the other lipid lowering agent, also increase the risk of myopathy. Myasthenia gravis भी वर्स हो सकता है. Okay, this is another important, sodium fusidate. If the patient is taking sodium fusidate तो 1 वीक तक स्टेटिन्स को स्टॉप कर देना जरूरी है. Okay, because this the sodium fusidate significantly increase the level of statins, and due to that increase the risk of rhabdomyolysis. Renal impairment may start with the low dose, monitor creatinine kinase and renal function. Hepatic अमाइनो ट्रांसफरेज, जैसे हम यहाँ पे क्रिएटिनिन काइनेज को मॉनिटर करते हैं, वैसे 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को मॉनिटर करना जरूरी है while patient is taking statins. One is amino transferase and other one is creatinine kinase. Okay, so that is the indicator of the liver impairment, and this is the indicator of rhabdomyolysis or muscle related problems. In elderly patients, increase the risk of myopathy, especially in the patient those who are more than 80 years, frail, बहुत ही कम फ्रेम या तो स्ट्रक्चर है, मसल्स नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम्स होने की चांसेस है. चिल्ड्रंस फ्रॉम द 8 year and older patients can be used. Avoid in pregnancy. क्यों अवॉइड करना है? बिकॉज द fetal cholesterol is very important for the development. ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है तो अवॉइड करना है. एडवर्स इफेक्ट, वैसे तो स्टेटिन्स आर pretty much accepted medications, but sometimes the patients are getting myalgia. That means the muscle pain, tiredness, weakness, this kind of side effects might experience. Increase the level of aminotransferase, and also the GI upset, headache, insomnia and dizziness. This kind of complaint can associated with the statins. नॉर्मली जो मेजर कंसर्न है वो है माइलेजिया, rhabdomyolysis, मायोपैथी इसका. ओके, रेयर साइड इफेक्ट्स में मायोपैथी, rhabdomyolysis, renal failure, hepatitis. And other type of side effects, visual disturbance, alopecia, pancreatitis, sexual dysfunction, neuropathy, this kind of problems. मेन जो मसल्स रिलेटेड सिम्टम्स है, मसल्स रिलेटेड सिम्टम्स आर डोज डिपेंडेंट. दैट्स वाई वी हैव टू यूज द स्टेटिन्स एट द मॉडरेट लेवल. लाइक फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम, इस तरह से उसका डोज फ्रिक्वेंसी में अवेलेबल है. So ideally we can use the 20 milligram. If required, we can go up to the 40 milligram. Instead of going to 80 milligrams, at this point we can add the ezetimibe or other medications. So we are using the 2 different pathways, 2 different mechanisms to get the maximum benefits in the lipid lowering activities, and also we significantly reduce the side effects associated with the statins. Okay, because most of the muscle related side effects are dose dependent. That means the higher dose, higher the risk of side effects. Increase the risk in elderly, ill patients, and also increase the risk with the drug interactions. Those medications are impaired the metabolism of the statins. Those medication interaction also increase the risk of rhabdomyolysis or myopathy. Often appear in first 4 to 6 weeks. If the patient is more likely to develop these kind of side effects in first couple of months time. Okay, rare side effects can occur is necrotizing myopathy with the high creatinine kinase. Liver function, about 2% of the dose dependent. Once we reduce the dose, this aminotransferase concentration become normal. Diabetes risk, okay, theoretically that risk is increased. One
case per 255 people, but increased diabetes risk is lower than the cardiovascular problems. We are getting the more benefits in cardiovascular, so thus the benefit is outweighed than the risk. Okay, so we have to ignore this diabetes risk. This is very important comparative information. Atorvastatin, rosuvastatin and simvastatins are considered as a more potent medications. Less interactions are associated with pravastatin, rosuvastatin and fluvastatin. So if the patient is on polypharmacy, then we have to prefer pravastatin, fluvastatin or rosuvastatin instead of simvastatin or atorvastatin. Okay, so this is the important point with the comparative information, comparative perspectives. Okay, dosing guidelines: start with the lowest possible dose and titrate after 4 weeks. So every 4 to 6 weeks we are going to reassess the lipid profile and then we can change the dose. 80% of the lipid reduction, lipid lowering can seen at the 50% of the maximum dose. उसका मतलब क्या हुआ कि 80 मिलीग्राम जो डोज है मैक्सिमम, तो 40 मिलीग्राम पर वी आर गेटिंग 80% बेनिफिट्स. अब यहाँ से डोज को इंक्रीज करके हम ऊपर तक जाएंगे तो हमारे पास बेनिफिट्स का रूम तो खाली 20% का ही है, लेकिन साइड इफेक्ट्स का रूम बहुत बड़ा है. इसीलिए वी डोंट हैव टू चेस द मैक्सिमम डोज ऑफ द स्टेटिन, वी हैव टू स्टे एट दिस लेवल and we instead of that we have to add the medication. Instead of dose escalation, डोज को बढ़ाने की बजाय हमें कंसिडर एडिंग द मेडिकेशंस लाइक एजिटेमाइब, bile acid binders or stellor-margarin. This kind of substances need to be added. Okay, counseling. When the patient start with the medications, muscle pain या तो dark urine आ रहा है, weakness हो रही है, तो these are the sign or symptoms of the rhabdomyolysis or the muscle related severe conditions. So immediately you have to contact or inform your doctor. Practice points. एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की सिचुएशन में स्टेटिन को स्टॉप नहीं करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट स्टॉप स्टेटिन ड्यूरिंग द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स. यूज स्टेटिन इन मिक्स्ड hyperlipidemia for high cardiovascular risk patient. Pancreatitis mainly because of हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, इसके लिए इसका यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इज फाइब्रेट्स इंस्टेड ऑफ स्टेटिन्स. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अर्लियर वी बिलीव नाइट टाइम इज द बेस्ट टाइम टू टेक द मेडिकेशंस, बट कंप्लायंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टाइमिंग्स. उसका मतलब अगर पेशेंट को रोज सुबह ही याद आ जाता है मेडिकेशन लेना, तो सुबह को लेने में कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि pravastatin and simvastatin, these are the short acting statins. That's why they need to be taken at the night time if it's preferable. Okay, only if doesn't affect adherence. मतलब पेशेंट को याद करने में और मेडिकेशन लेने में अगर यहाँ पे इश्यू आता है तो वो दूसरे टाइम पे ले सकता है. मान लो किसी को नाइट शिफ्ट है तो वो मेडिकेशन लेना भूल जाता है रात को, तो वो सिचुएशन में इम्पोर्टेंट है कंप्लायंस इंस्टेड ऑफ टाइमिंग्स. ओके, टाइमिंग से थोड़ा 19-20 फर्क पड़ता है, पर कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है pravastatin and simvastatins लाइक शॉर्ट एक्टिंग स्टेटिन्स प्रिफरेबल टू टेक एट द नाइट टाइम. थ्योरी ऐसी है कि ये नाइट में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो HMG को के ऊपर इफेक्ट से हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं. मॉनिटरिंग एंड एडवर्स इफेक्ट मैनेजमेंट. मॉनिटरिंग क्रिएटिनिन काइनेज एंड अमाइनो ट्रांसफरेज, ये मसल के लिए और ये लिवर फंक्शन के लिए. बेसलाइन वी हैव टू मॉनिटर एंड देन सिम्टम्स अराइज. अगर बढ़ता है तो कब स्टेटिन को स्टॉप करना है. अगर क्रिएटिनिन काइनेज का अपर लिमिट नॉर्मल से 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका है तो डेफिनेटली उसको बंद कर देना है. अमाइनो ट्रांसफरेज की कॉन्सेंट्रेशन अपर लिमिट से 3 टाइम्स हायर है तो बंद कर देना जरूरी है. परसिस्टेंट अनएक्सप्लेन मसल पेन एंड वीकनेस है तो वो सिचुएशन में वी हैव टू स्टॉप
giving the statins. So these are the roadmap that can give us an instruction about the what need to be done if the biochemistry changes happen with the statin management. Okay, कब से रिज्यूम करना है? क्रिएटिनिन काइनेज नॉर्मल हो जाता है, मायोपैथी वाज माइल्ड, नो ड्रग इंटरेक्शन एंड कॉज फाउंड, कंसिडर लोअर डोज एंड ऑल्टर स्टेटिन, ऑल्टरनेटिव डे डोजिंग. या तो ऐसे कर सकते हैं, ऑल्टरनेट स्टेटिन दे सकते हैं, दूसरा स्टेटिन, या तो स्टेटिन के डोज को चेंज कर सकते हैं. कोएंजाइम Q10, ऐसा कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि कोएंजाइम Q10 एज ए सप्लीमेंट्स देने से मायोपैथी में कुछ फ़र्क पड़ता है, पर उसके कोई इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है. कोएंजाइम Q10 इन विटामिन डी, वो सप्लीमेंट्स देने से मायोपैथी में फ़र्क पड़ता है. कुछ रिसर्च पेपर्स उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, पर क्लिनिकली दैट इज़ नॉट प्रूवन येट. ओके, मोटा मोटा देखें तो स्टेटिन्स के बारे में आप एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हो. 1 से 2 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टेटिन इन योर एग्जाम. ओके, फाइब्रेट्स में फिनोफाइब्रेट्स एंड गेमफाइब्रोजिल. दिस इज मेनली यूज फॉर रिडक्शन इन ट्राइग्लिसराइड लेवल and also increase HDL level. This is the good cholesterol. Variable effect in low density lipoprotein, but main फायदा है उसका ट्राइग्लिसराइड के टूवर्ड्स है, उसको रिड्यूस करता है. पॉइंट याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट फाइब्रेट्स के बारे में, दैट इज ए फोटोसेंसिटिविटी. ओके, बिकॉज photosensitivity increase the risk of photosensitivity, and that's why you have to incorporate this point in your counseling. Sunscreen को लगाना जरूरी है. sun protection is very important while you are taking the fibrates. तो fibrates के साथ में sun protection photosensitivity वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरा, रीनल इम्पेयरमेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हिपेटिक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, गॉल ब्लैडर डिजीज, ये सारे हिपेटिक एंड रीनल में कॉन्ट्राइंडिकेटेड. फोटोसेंसिटिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जब स्टेटिन के साथ में फाइब्रेट्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ मायोपैथी. ये कॉम्बिनेशन से मायोपैथी का रिस्क बढ़ जाता है. ओके, बच्चों में स्पेशलिस्ट एडवाइस इज रिक्वायर्ड, प्रेगनेंसी में स्पेशलिस्ट एडवाइस इज रिक्वायर्ड, ब्रेस्ट फीडिंग में we are normally don't preferred. Adverse effect देखो तो common adverse effect, GI disturbance, dyspepsia, abdominal pain and increased creatinine concentration. रिवर्सिबल है, वैसे बंद करोगे तो बंद हो जाएगा. इनफ्रीक्वेंट में pancreatitis, gallstone and photosensitivity, these are the problems. Okay, जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मायोपैथी, रॉब्डोमायोलिसिस. These are the rare side effects, but we must have to understand. Hypersensitivity reaction, angioedema, anaphylaxis, this kind of side effects associated with the fibrates. मेनली कौन सा पॉइंट याद रखोगे फाइब्रेट्स में? GI डिस्टर्बेंस, फोटोसेंसिटिविटी एंड इंक्रीज द क्रिएटिनिन कॉन्सेंट्रेशन. Counseling, seek urgent medical attention if the muscle pain, tenderness, weakness or dark brown urine आता है, that is a rhabdomyolysis. Avoid sun exposure and use the sunscreen or sun protections. These are the advice or counselings. Protective clothings and sunscreens are very important. Okay, don't reduce mortality and fatal myocardial infarction and stroke in dyslipidemia patients. Use primarily in hypertriglyceridemia. अगर ट्राइग्लिसराइड की कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है तो इससे पेंक्रिएटाइटिस होने से बचाने के लिए फाइब्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाइपर कोलेस्ट्रॉल में उसका यूज़ नहीं करना है. हाइपर कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादातर रोल है वो स्टेटिन्स का है, फाइब्रेट्स का नहीं है. मॉनिटर कंप्लीट ब्लड काउंट्स, लिवर फंक्शन, इसको देखना ज़रूरी है. क्रिएटिनिन काइनेस बेस लाइन पर देखना ज़रूरी है.
ओके, सो ट्रीटमेंट करने से पहले वी हैव टू बिल्ड द बेस लाइन एंड देन वी हैव टू स्टार्ट डूइंग द ट्रीटमेंट आफ्टर 4 to 6 weeks. We have to again re-perform all these tests and then we can make the judgment, does the medication is causing any kind of problems or not. Okay, now come to the other lipid lowering medications. कोलेस्ट्रोलामाइन का नाम क्या है? बाइल एसिड बाइंडर्स. अब ये आपका जो लीवर में से बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पे बाइल एसिड जो आता है वो बाइल एसिड वापस यहाँ से अंदर चला जाता है, लेकिन ये बाइल एसिड का जो प्रोडक्शन है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है. अब बाइल एसिड बाइंडर्स देंगे तो वो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो बेस होगा, तो ये एसिड बेस से ये उसको बाइंड कर लेगा, तो ये बाइंडिंग से बाइल एसिड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होती जाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल का जो यूज़ है वो बढ़ता जाएगा ये प्रोडक्शन के लिए. तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे ज़्यादा चाहिए तो वो यहाँ से अपटेक करता जाएगा, तो अल्टीमेटली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम होती जाएगी क्योंकि वो प्रोडक्शन बाइल एसिड की प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो रहा है. ओके, इसीलिए बाइल एसिड बाइंडर्स के बारे में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. सबसे इम्पोर्टेंट, बाइल एसिड बाइंडर्स कैन बाइंड विथ अदर वीकली एसिडिक सब्सटेंस. तो बाकी जो वीकली एसिडिक सब्सटेंस है उसके साथ अगर हम बाइल एसिड बाइंडर्स लाइक कोलेस्ट्रोलामाइन देंगे तो दूसरी मेडिकेशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. इसीलिए वी हैव टू सेपरेट करना है, अपार्ट करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा है कि अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में देंगे तो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स ADEK उसकी डेफिशिएंसी होगी क्योंकि उसका भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसके लिए भी उसको फैट चाहिए, फैट के लिए उसको बाइल्स चाहिए. तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर ज़्यादा डोज में ले रहे हैं तो ADEK की डेफिशिएंसी होगी और दूसरी मेडिकेशंस के साथ नहीं लेना है, तो या तो 1 घंटे पहले लो या कुछ घंटे बाद लो दूसरी मेडिकेशंस. बाइल एसिड्स इन द इंटेस्टाइन लुमेन प्रिवेंट द रीअब्जॉर्प्शन, उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा. सो इंक्रीज द बाइल एसिड एक्सक्रीशन बढ़ेगा. इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल डिमांड फॉर द बाइल एसिड सिंथेसिस, क्योंकि बाइल एसिड सिंथेसिस में उसका यूज़ होता है, एंड उसकी वजह से इंक्रीज द हेपेटिक LDL अपटेक्स. ओके, तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. इंडिकेशन हाइपर कोलेस्ट्रोमिया में यूज़ होता है और पार्शियल बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से बाइल का एक्यूमुलेशन और उससे जो ईचीनेस आती है, ईचिंग होता है, उसके लिए भी यूज़ होता है, लेकिन दैट विल टेक सम टाइम टू गेट द बेनिफिट्स. और अगर किसी को डायरिया है बाइल रिलेटेड तो वो सिचुएशन में भी दिस मेडिकेशन कैन बी यूज. तो ईचीनेस, डायरिया एंड हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, दिस आर 3 यूनिक यूजर केस ऑफ द कोलेस्ट्रोलामाइन. ओके, काउंसलिंग में मिक्स विद द वाटर, जूस और फ्लूइड फूड जैसे कि सूप के साथ में ले सकते हैं. ग्रीटी टेक्सचर है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम 3-4 घंटे उसको फ्रिज में या तो ओवरनाइट रख के फिर ले सकते हैं. टेक मेडिसिन 1 आवर बिफोर और 4 to 6 आवर्स आफ्टर. क्यों? क्योंकि वो दूसरी मेडिकेशन की एब्जॉर्प्शन को इम्पेक्ट कर सकता है. प्रैक्टिस पॉइंट, कैन बी एडेड टू स्टेटिन्स के साथ में उसको कंबाइन कर सकते हैं टू एनहेंस द LDL रिडक्शन. हाई डोज अगर 24 ग्राम्स पर डे अगर लेता है तो डिक्रीज द फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्प्शन और उसके सप्लीमेंट्स देना जरूरी हो जाता है. रीएसेस इफ़ नो रिस्पॉन्स इन डायरिया आफ्टर 3 days, अगर 3 दिन में पेशेंट को डायरिया में बेनिफिट्स नहीं होता है तो वी हैव टू रीएसेस द सिचुएशन. और ईचनेस के लिए, बेनिफिट्स के लिए वी हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू रिड्यूस द bile concentration. 1 to 3 weeks required for benefits in itchiness. तो कोलेस्ट्रोलामाइन के लिए ये 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको माइंड में फिट करना है. एजिटिमैब, दिस मेडिकेशन इज ऑल्सो यूज फॉर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए. इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन वॉल. इंडिकेशन हाइपर कोलेस्ट्रोमिया के लिए या तो जो होमोजाइगस जो सिचुएशन है सिटोस्टेरोलेमिया, इसके लिए इसका यूज़ होता है. कॉम्बिनेशन विद द फिनोफाइब्रेट्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ गॉल ब्लैडर डिजीज. मसल पेन, टेंडरनेस या तो वीकनेस जैसी पॉइंट्स अगर प्रॉब्लम्स आती है तो कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर. प्रैक्टिस पॉइंट्स, बहुत ही वेल टॉलरेट मेडिकेशन है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है.
that's reduce the low density lipoprotein but no evidence of clinical benefits when used alone. उसका मतलब एजिटेमाइब 10 मिलीग्राम का एक ही डोज में अवेलेबल है, वंस डेली अवेलेबल है, और ये मेडिकेशंस नॉर्मली स्टेटिन्स के साथ में कॉम्बिनेशन में दी जाती है, मोनोथेरेपी है, मतलब यूज़ अलोन में उसका कोई ऐसा रोल नहीं है। एडिशनल 20% LDL रिडक्शन हो सकता है अगर स्टेटिन के साथ में कंबाइन लेंगे तो, एंड रिड्यूस मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड स्ट्रोक इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स, नो लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा अवेलेबल इन चिल्ड्रंस। ये ठीक है, हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो एजिटेमाइब इम्पोर्टेंट था, कोलेस्ट्रेलेमाइन इम्पोर्टेंट था। अब आता है निकोटिनिक एसिड। जैसे in earlier time we have discussed about the nicotinic acid has a very unique kind of benefits that reduce the triglyceride and LDL concentration significantly, लेकिन निकोटिनिक एसिड का एक प्रॉब्लम भी है। ओके, तो that is decrease the LDL, decrease triglyceride, increase HDL, decrease lipoproteins, मतलब कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग में, लिपिड लोअरिंग में, ओवरऑल लिपिड लोअरिंग में दिस इज द गुड मेडिकेशन। इंडिकेशन हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, मिक्स हाइपरडिस्लिपिडेमिया, हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया एंड पेलाग्रा जैसा जो कंडीशन है उसके लिए यूज़ होता है। टेक विथ फूड टू रिड्यूस द GI साइड इफेक्ट्स। इससे GI अपसेट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स। दूसरा जो उसका प्रॉब्लम है वो ये देखिए, फ्लशिंग एंड स्टमक अपसेट। If patient is continuously taking this medication, after 2 to 6 weeks body is used to it and symptoms vanish, वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कि आपने लंबे टाइम तक फिर से डोज मिस कर दिया तो उसके बाद जब चालू करोगे तो वापस वो सिम्टम्स आ जाएंगे। ओके, मसल सिम्टम्स इमीडिएटली आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो यू हैव टू रिपोर्ट इट। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने वाला है वो ये है, स्टार्ट विद द लो डोज, डिवाइड एंड यूज विद द एंटासिड्स। जो GI अपसेट का प्रॉब्लम है ओके वो रिड्यूस कर सकते हैं एंटासिड्स के साथ लेने से या तो फूड के साथ लेने से। फ्लशिंग मतलब वेजोडाइलेटरी इफेक्ट जो इसकी है निकोटिनिक एसिड्स की, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ये वेजोडाइलेटरी इफेक्ट और उसकी वजह से वो फ्लशिंग और ये प्रॉब्लम्स आती है। इसको मिनिमाइज करने के लिए what we can do is we can give NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory substances like aspirin 150 milligram या तो brufen 200 milligram 30 minutes before निकोटिनिक एसिड अगर देते हैं तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाता है। Normally this problem is also, if the patient is continuously taking medication for a while, this problem is also resolved, और फिर वो बंद करके फिर से चालू करता है तो आ सकता है। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं प्री मेड विथ एनेसाइड्स, प्री मेड विथ एनेसाइड्स दैट कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम्स। और यही सबसे बड़ा रीज़न है इसका इनटॉलरेंस का। लोग निकोटिनिक एसिड को नहीं ले सकते, उसका मेन कारण यही है। ओके, दैट्स व्हाई दिस मेडिकेशन इज़ नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन रूटीन इन रेगुलर सिचुएशंस। ओके, ये दो जो बायोलॉजिकल्स प्रोडक्ट्स है, इवोलोकुमेब, दिस बायोलॉजिकल्स इज बाइंड टू प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज। ओके, PCSK9 इसके साथ में बाइंड होके दैट्स प्रिवेंट द LDL रिसेप्टर डिग्रेडेशन। जो सेल में और लीवर में जो LDL रिसेप्टर है, LDL रिसेप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपटेक। अब होता क्या है, कुछ प्राइमरी सिचुएशंस में इसका डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाता है। अब इसका डिस्ट्रक्शन होगा तो LDL का अपटेक नहीं हो पाएगा। अब LDL का अपटेक नहीं होगा तो वो सिचुएशन में क्या होगा कि LDL की कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ती जाएगी। इसीलिए दिस मेडिकेशन इवोलोकुमेब दैट इज डिक्रीज द डिग्रेडेशन ऑफ LDL रिसेप्टर्स एंड उसका डिक्रीज होने से दैट इम्प्रूव द LDL का अपटेक्स एंड दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द LDL कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड। तो मेन जो रोल है वो या तो फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रेमिया है
या तो पेशेंट इज नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स, इज नॉट गेटिंग इनफ रिस्पॉन्स विद द स्टेटिन। स्टेटिन की रिस्पॉन्स आने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो HMG कोए को इनहिबिट करता है, दैट इज़ द वन मैकेनिज्म, लेकिन सेकेंड मैकेनिज्म के लिए उसको ये रिसेप्टार तो होना चाहिए ना। अगर LDL रिसेप्टार ही नहीं है या तो LDL रिसेप्टार की फंक्शनैलिटी ही नहीं है तो फिर स्टेटिन्स का यूज़ उतना इम्प्रूव नहीं हो सकता है, उतना बेनिफिट्स नहीं मिल सकता है, क्योंकि दिस इज़ द अनदर मैकेनिज्म ऑफ स्टेटिन फंक्शन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस इवोलोकुमेब that improve the LDL receptor survivability, and due to that they decrease the LDL concentration. Is a similar kind of substance is inclisiran. Okay, this is siRNA based inhibitors. This is the small interfering ribonucleic acid that inhibit the proprotein convertase PCSK9 production. इसकी प्रोडक्शन को कम करता है और उसकी वजह से क्या होता है, दैट्स इंक्रीज द LDL क्लियरेंस फ्रॉम द ब्लड. Pretty much similar ultimate mechanism, but the different kind of medications. Okay, so these two biological substances are also used for the management of LDL. और ये किसके लिए यूज़ होता है, हेटेरोजीनियस फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेरोमिया, एथेरोक्लोरोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एंड पेशेंट इज नॉट गेटिंग इनफ रिस्पॉन्स विद द स्टेटिन्स. तो ये दोनों ही इंजेक्टेबल फॉर्म में है और इसके इंजेक्शंस मल्टीपल, मतलब रोज लेने वाला नहीं होता है, 2 वीक्स में वंस और 6 मंथ्स, इस तरह से उसकी स्पेशल डोजिंग इंस्ट्रक्शंस है. दिस इज़ द बायोलॉजिकल्स. तो बायोलॉजिकल्स के साथ में कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होती है, एलर्जिक रिएक्शंस वाली होती है, फिर स्टोरेज कंडीशन वाली होती है, एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइस में वो इंजेक्टेबल फॉर्म में है. तो दिस आर द पॉइंट्स दैट is very common with all the biologicals. Counseling administered by the health professionals after 2 initial dose, give every 6 months. Low density lipoprotein reduced by 50% over 18 months in a combination, and long term morbidity and mortality में benefits होता है. Okay, so statins is very simple and very important point that you have to understand. कौन कौन से ड्रग्स को याद करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है पहले तो आपको एक ओवरव्यू समझ होना जरूरी है स्टेटिन्स के बारे में, लिपिड लोअरिंग मेडिकेशंस के बारे में. देन यू हैव टू क्रिएट अ टेबल विथ द लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस लाइक स्टेटिन्स, फाइब्रेट्स, निकोटिनिक एसिड्स, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल अमाइन, एजिटामाइब, फिश ऑयल एंड 2 बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस. ओके, उसको एक टेबल में जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि विच मेडिकेशन इज़ मोर टूवर्ड्स द ट्राइग्लिसराइड एंड विच मेडिकेशन इज़ मोर टूवर्ड्स द कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको ये समझ होना जरूरी है कि विच वन इज़ द मोर एथेरोक्लेरोटिक कोलेस्ट्रॉल, मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज़ हाईली डेंजर, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज़ गुड. Very low density lipoprotein is a combination of the low density lipoprotein and triglyceride. वो इस तरह से होता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड का भी कंपोनेंट है और इसमें कोलेस्ट्रॉल वाला कंपोनेंट भी है. इसको बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. जब इसमें से ट्राइग्लिसराइड निकल जाता है तो फिर एक कोलेस्ट्रॉल रह जाता है और एक ट्राइग्लिसराइड रह जाता है. ट्राइग्लिसराइड अलग हो गया और ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गए. ये बहुत ही हाईली एथेरोक्लेरोटिक है. ओके, और ये ट्राइग्लिसराइड की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से एक्यूट पेंक्रिएटाइटिस होता है, पेंक्रिएटाइटिस. तो ये 2 चीज़ें समझ में आना जरूरी है. स्टेटिन्स के लिए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लिए फाइब्रेट्स. निकोटिनिक एसिड कैन रिड्यूस द बोथ. Okay, and cholesterol-amine increase the triglyceride level, but that help to reduce the cholesterol level. और बाकी कुछ जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार आप याद कर लोगे तो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, पर दैट कैन एड मोर वैल्यू इन योर लर्निंग प्रोसेस. ओके, और ज़्यादा डिटेल के लिए आपके पास क्लिनिकल साइंस में भी है डिसलिपिडेमिया, एंड ऑल्सो इन योर अप्लाइड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में भी है. ओके, तो वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हो. ये थोड़ा प्रैक्टिस ओरिएंटेड है. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय, टेक केयर.